Hello class 9 students. I am Rimpi, chemistry faculty at Akash Institute, and I welcome you all to the another session of Concept Mantra with me. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है but hides a very deep meaning behind it. So we are going to talk about solid, liquid and gases today. But after this video you won't have to cram the properties of solids, liquids and gases. So let's study it with the help of an example. Take the ice cubes out of the freezer. Keep it in a pan at the room temperature. What's gonna happen? After some time the ice will start melting and turn into water, right? Keep this pan on the burner and turn it on. The ice will completely convert into water, and after some time the water will start boiling and convert into steam. So in this whole process, does the identity of the water change? No. Only the behavior of the particles has changed. And this behavior of the particle is what truly defines solids, liquids and gases. So without further ado, let's start our topic today. So this matter is anything that occupies space, right? And the physical states of matter, that are solids, liquid and gases, they are governed by two factors. One is interparticle force of attraction and the another one is kinetic energy. So this interparticle force of attraction, what it actually does is it keeps the particles close to each other. It is the force of attraction that keeps the particles very close to each other. It binds them, okay? Tends to bring particles together. Particles together. Whereas this second factor, that is kinetic energy, it is the energy that keeps the molecules apart from each other, right? It tends to keep particles apart. तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक जो पार्टिकल्स को बहुत क्लोज रख रही हैं और दूसरा जो उन्हें इनफ अपार्ट कर रही है. These two forces, that is interparticle force of attraction and kinetic energy, together they define the states of matter, that is solid, liquid and gases. So let's study how. So we all know, we have just discussed कि अगर हम आइस को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो after some time it will convert into water. So what is happening here is ice जिसके की molecules बहुत ही close हैं, जिसके की मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज हैं. क्यों? क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास हैं. जब आपने इसको हीट देना शुरू किया तो व्हाट इज हैपनिंग इज दीज पार्टिकल्स आर गोइंग अपार्ट, दे आर गेनिंग दी काइनेटिक एनर्जी. आप इनको हीट दे रहे हैं, इन्हें क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ब्रेक कर रही है और पार्टिकल्स के बीच में क्या आ रही है, थोड़ी सी दूरी आ रही है, राइट? स्टार्ट हीटिंग इट मोर, और एनर्जी प्रोवाइड करो. आप क्या दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, इससे टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं. और अब ये किस में कन्वर्ट होने लगा है, अब ये किस में कन्वर्ट होने लगा है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगा है, जहां पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बॉन्ड टूट गया. और अब कौन सी फैक्टर गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स कैन मूव अपार्ट. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड जिसमें इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी. थिंक ऑफ इट लाइक अ वेरी क्राउडेड प्लेस. बहुत ही क्राउडेड प्लेस है कि एक आपको वहाँ से गुजरना है, गली में बहुत भीड़ हुई पड़ी है, इतने लोग ठसाठस भरे हैं दैट यू कैन नॉट क्रॉस दैट लेन. थिंक ऑफ लिक्विड इन सम वे कि अब भीड़ तो है बट देयर इज स्टिल सम स्पेस अवेलेबल एंड यू कैन मूव फ्रॉम देयर. बट इन द केस ऑफ गैस, इन द केस ऑफ स्टीम, थिंक इट लाइक कि अब तो गली ऑलमोस्ट खाली ही पड़ी है एंड यू कैन पास थ्रू दैट लेन very speedily, right? Okay, so if we look at these solids, let's let's write the interparticle force of attraction as IP. So here interparticle force of attraction is very strong and kinetic energy of the molecule is almost negligible. So in solids interparticle force of attraction is very strong, molecules are very close, बहुत ही पास में molecules हैं, and that is why we define solids as having definite shape and definite volume, right?
यही पढ़ते आए ना हम अभी तक कि solids have, they have definite shape and definite volume. And what about liquids? In the case of liquids, the interparticle force of attraction, it is comparatively what? It is comparatively moderate. आपने हीटिंग दी थी इसे, तो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, पार्टिकल्स अपार्ट हो गए थे. दे टेंड टू हैव सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल. सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मॉडरेट इन दिस केस एंड दैट व्हाट मेक लिक्विड्स. अब लिक्विड्स के केस में क्या है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है एंड काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट है. सो इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, it has definite volume but indefinite shape. Indefinite shape. It takes the shape of the container in which you keep it. पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े से इस बार इसमें क्या है, एडजस्टिंग पार्टिकल्स हैं. जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं. बट वॉल्यूम, अगर 50 ml लिक्विड लिया था एक ग्लास में, उसे एक बोल में कन्वर्ट कर दोगे तो शेप तो बोल की ले ली उसने, लेकिन अभी भी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 50 ml ही रहेगी. ओके. If we talk about the gases, so in the case of gases, the interparticle force of attraction now it is negligible. Okay, think of it as a lane जिसमें क्या है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, बहुत कम भीड़ है. तो अब इसमें क्या है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. सो हियर व्हाट, हाउ वी डिफाइन इट, वी डिफाइन इट एज indefinite shape and indefinite volume. Okay, so solid, liquid and gases. Clear हुआ कि क्या है? Solid, liquid and gases are defined by how the particles behave, the behavior of the particles, and the behavior of the particles is governed by two factors: interparticle force of attraction and kinetic energy. Okay, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पे वी कैन डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो लेट्स स्टार्ट. सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड्स के केस में नेग्लिजिबल है. लिक्विड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास में क्या है, मॉडरेट लेवल की है. दे हैव समवट काइनेटिक एनर्जी, राइट. कैसे याद किया था कि सॉलिड्स के केस में क्या है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, यू कैन नॉट पास दैट लेन, इट इज अ वेरी क्राउडेड लेन, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, नेग्लिजिबल हुई, यू कैन नॉट पास दैट लेन. इन द केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज स्टिल सम क्राउड बट you can move, you have some kinetic energy. So in the case of liquids the kinetic energy is moderate, and in the case of gas the lane is almost empty, you can pass in a very great speed from there. So in the case of gases the kinetic energy is high, the molecules have high energy, right. Let's talk about the interparticle force of attraction. In the case of solid, it is a very crowded lane, so interparticle force of attraction is very strong. In the case of liquids, the lane is somewhat less crowded, so interparticle force of attraction is moderate. And in the case of gases, again the lane is almost empty, so the interparticle force of attraction is almost negligible. Okay. The next property is arrangement of the particles. In solids हमने क्या बोला था, क्योंकि अब इसमें इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, एकदम फिक्स होगी. पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे है वैसे ही है. क्राउडेड लेन, राइट, ठसाठस पैक हुई पड़ी है, तो इट विल रिमेन एज इट इज. दैट इज व्हाई वी से डेफिनेट शेप, राइट. सो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल हियर इज फिक्स्ड. In the case of liquids, it has moderate kinetic energy. The particles can move. अब movement हो सकती है, तो arrangement fix तो नहीं ही हो पाएगी. That means that in liquids, the particles of the arrangement is not fixed. और gases के केस में तो बहुत ज़्यादा kinetic energy है molecules के पास, तो यहाँ तो fixed arrangement का बात ही नहीं होती, because molecules they have the tendency to go apart. So here also the arrangement is not fixed. The next property we have is interparticle space. अब crowded lane में space की उम्मीद तो नहीं कर सकते. So in the case of solids, since the arrangement, the interparticle force of attraction between molecules is very high, that means the interparticle space available is negligible. No space available. Okay. In the case of liquids, the moderate space is available, and in the case of gases, large space is available. The next property that we have is shape and volume. We have just discussed that solids, they have definite shape
definite shape and definite volume. In the case of liquids, the shape is indefinite as it takes the shape of the container, but volume is definite. Volume is definite. And in the case of gases, neither volume nor shape is definite. So indefinite shape and indefinite volume. The next property is compressibility. Again, सारी properties हमने क्या बोला था, हम किससे define करेंगे? The two factors that govern the state of matter. So compressibility का मतलब क्या है कि आपको उसको कंप्रेस करना है, मॉलिक्यूल्स को बहुत पास लाना है प्रेशर लगा के, ठीक है। अब सॉलिड्स के केस में क्या है, सॉलिड्स के केस में क्या है, मॉलिक्यूल्स एकदम ऐसे पास हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, नो स्पेस इज अवेलेबल। जब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो कंप्रेस कैसे हो सकते हैं, राइट और पास कैसे लेकर आओगे, वो ऑलरेडी मैक्सिमम पास हैं। सो दैट मीन्स इन द केस ऑफ सॉलिड्स द कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल. इन द केस ऑफ लिक्विड सिंस सम स्पेस इज अवेलेबल, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो और पास आ पाएंगे, राइट वो और पास आ पाएंगे. सो इन लिक्विड्स द कंप्रेसिबिलिटी इज मॉडरेट, दे आर कंप्रेसिबल, राइट. एंड इन द केस ऑफ गैसेस अब क्या है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है इनके पास, तो बहुत प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई हाई प्रेशर एंड येस दे कैन कम वेरी क्लोज टुगेदर. सो इन द केस ऑफ गैसेस द कंप्रेसिबिलिटी इज very high, and one such example that we see in our daily life is our LPG cylinder. इसमें क्या है, आपकी liquefied petroleum gas. तो उस गैस को आपने क्या किया है, बहुत हाई प्रेशर पर उसमें स्टोर किया हुआ है कि गैस प्रेशर डलने की वजह से जिसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे थे, जब आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास आए और वो क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही तो है जो उनको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे डिफाइन कर रही है, राइट. तो जब आपने गैस के ऊपर प्रेशर डाल के उसको सिलेंडर में बंद करने की कोशिश की तो वो क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई. दैट इज व्हाई यू से इट LPG. ओके, so in the case of gases the compressibility is very high. Now the next property is diffusion. तो diffusion का मतलब क्या होता है, the movement of the particles, right. अब अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इसके एग्जांपल्स हम अपने घर में देखते हैं. जैसे कि अगर हमने घर में अगरबत्ती जलाई है तो पूरे घर में क्या होगी, खुशबू महक जाएगी, राइट. गरम गरम खाना बन रहा है, मम्मी कुछ टेस्टी सी चीज़ बना रही है तो भी क्या हुआ है, उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती है, राइट. पूरे घर में फैल जाती है वो खुशबू. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन. अब हम सॉलिड्स के केस में बात करें, मूवमेंट शो करनी है बेसिकली. सॉलिड्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, वो मूवमेंट कैसे शो करेंगे. सो डिफ्यूजन इज नॉट शोन बाय सॉलिड्स, बट लिक्विड्स इनके पास में क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है, तो दे कैन शो अ मॉडरेट लेवल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, अ मॉडरेट लेवल ऑफ डिफ्यूजन इज शोन बाय लिक्विड्स. एंड इन द केसेस ऑफ गैसेस इनके पास तो क्या है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, सो दे कैन शो डिफ्यूजन वेरी हाई. तो सबसे हाई डिफ्यूजन कौन शो करती हैं, गैसेस. अभी आपने देखा कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स भी दिए थे, चाहे वो इंसेंस स्टिक बर्न करने का था, गरम गरम खाने का था, सब में किसके एग्जाम्पल थे, गैस पार्टिकल्स के ही एग्जाम्पल थे, विच कैन शो मूवमेंट, विच कैन शो डिफ्यूजन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो आपको सॉलिड्स को मेल्ट करना है तो क्या है, सॉलिड्स में क्या होगा, बहुत पास मॉलिक्यूल्स हैं, यू विल ब्रेक दीज बॉन्ड्स, यू विल ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो सॉलिड जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इन द सेम वे लिक्विड्स में क्या है, कंपैरेटिवली वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब लिक्विड को बॉयल करके किस में कन्वर्ट होना है, गैस में कन्वर्ट होना है. व्हेन यू विल प्रोवाइड हीट, यू विल प्रोवाइड एनर्जी टू दीज लिक्विड पार्टिकल्स, व्हाट्स गोना हैपन इज कि ये पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे और दूर चले जाएंगे एंड इवेंचुअली विल कन्वर्ट इनटू गैस. यही हो रहा है ना, दिस इज हाउ द पार्टिकल्स डिफाइन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब सॉलिड्स के केस में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास में है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. तो इन द केस ऑफ सॉलिड्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. इन द केस ऑफ लिक्विड्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीकर है, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. तो यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कंपैरेटिवली सॉलिड्स के कम होगा. एंड इन द केस ऑफ गैसेस यहाँ पे क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो यहाँ के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी. बॉन्ड्स है ही नहीं तो तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी. सो हियर दे हैव वेरी
low melting and boiling points. Now the last property that we have is density. In the case of solids, since the interparticle force of attraction is very strong, particles बहुत पास में है, that means solids के अंदर क्या है, density बहुत ज़्यादा है, very high density. In the case of gases, particles बहुत दूर हैं, interparticle force of attraction is negligible, and that is why the density of the gases is very low. और liquids के case में, as usual, it has moderate density. So solids have the highest density, gases have the lowest density, and liquids have somewhat in between density. Okay, so that was all about the solid, liquid and gases from my side. Now you can proudly say that what defines truly a state of matter. So a state of matter is truly defined by how strongly the particles attract each other and how much energy they have to move. That means interparticle force of attraction and kinetic energy, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती हैं. विद दिस थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.